Chapter number 3, 3.4 Spinning Cotton Yarns. You can try making cotton yarns yourself. Activity 4. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now, gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Figure 3.9. Are you able to make a yarns? ये फिगर नंबर 3.9 है। उस तरह से आप एक धागे को पकड़ लीजिए और आप उस तरह से इसमें बताया गया है उस तरह से आप ट्राई कीजिए। क्या आप यार्न्स बना पा रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarns. फाइबर्स को यार्न में बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको स्पिनिंग कहते हैं और इसी तरह से ट्विस्टेड करते जाओगे और यार्न बनता जाएगा। देन फाइबर्स हमको मिलेंगे। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड ऑफ फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली. Another hand-operated divided use for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarns termed as khadi and son, imported clothes made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commissions in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabric. आप इसको हैंड स्पिंडल से भी कर सकते हो, पर एक दूसरी प्रयुक्ति है जिसे हम यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, चरखा। उस तरह से भी हमको फैब्रिक हम बना सकते हैं। और आपने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी लोगों से, हमारे देशवासियों को कहा था कि आप इससे चरखे से बने हुए खादी वस्त्र को यूज़ कीजिए और ब्रिटेन के मिलों में जो कपड़े बनते हैं उसका बहिष्कृत कीजिए। ओके, और यहाँ पे आप चरखा की फिगर भी देख सकते हैं और इस तरह से हम स्पिनिंग इजीली कर सकते हैं और फैब्रिक यार्न में से हम मिल सकता है हमको। 3.5 yarn to fabric. There are many ways by which fabric are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. First, weaving. In activity 2, you might have noticed that fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. बुनाई के बारे में हम अब पढ़ेंगे। जैसे कि आपने यार्न के बारे में पढ़ा, अब यार्न को टू सेट को अरेंज करने के बाद जो मिला के बनता है उसके हम क्या कहते हैं? फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग, बुनाई। ओके, देन एक्टिविटी 5. Take two sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other show figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Wave the strips one by one through the cut in the sheets of paper as shown in figure number 3.12c and figure 3.12d. Show the pattern after waving all the strips. भिन्न भिन्न कलर के दो कागज़ के स्ट्रिप्स लीजिए और इस फिगर में आप देख सकते हैं उस तरह से आप सेम, मतलब कि उसकी चौड़ाई सभी एक जैसे कि 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, और इस फिगर में दिखाया गया उस तरह से आप उसको अरेंज कीजिए और उसे इस फिगर ए और बी में दिखाया गया उसी तरह से सेम उस पर आप लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आप जिस तरह से लाइन ड्रॉ की है उस तरह आप उसको काट लीजिए और यहाँ पे फिगर सी में दिखाया गया है उसी तरह से आप अब उसको बुन लीजिए।
और आपकी ये डी फिगर है उसी तरह आपका ये आपने जो बनाया है वो दिखाई देगा. ओके. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. Then yarns much thinner than our paper strips of gauze. Weaving of fabric is done on looms. Figure 3.13. The looms are either hand operated or power operated. आपने जो एक्टिविटी की उसमें जो पेपर शीट है वो तो बहुत थोड़ी सी थिक है, पर जो थ्रेड होते हैं वो तो कैसे होते हैं, यार्न्स के पतले पतले होते हैं, थीन होते हैं. ओके. और यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं इस तरह से लूम से वो प्रोसेस होती है. और लूम्स है जो ऑपरेट होते हैं, पावर से भी ऑपरेट होते हैं और हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं. ओके. देन knitting. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर knitted? In knitting, a single yarn is used to make piece of fabric. Have you ever pulled yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Unraveled socks and many other clothing items are made of knitting fiber. Knitting is done by hand and also on machines. आपने स्वेटर को बुनते हुए देखा है, किस तरह से उसको बुना जाता है. यहाँ पे फिगर 3.14 knitting आपको दिखाई गई है. उस तरह से आपने जो इस तरह से बने हुए होते हैं और इस तरह से वो बुने जाते हैं कि अगर एक धागा निकले तो उससे कई सारे धागे निकलते ही जाएंगे. आपने फील किया होगा अपने शॉक से, राइट. और फिर क्या होता है वो आपको पता ही है. और जो knitting की प्रोसेस है वो हैंड से और मशीन्स दोनों से वो प्रोसेस हो सकती है. Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of fibers of our covering of coconut. What are these fibers normally used? पहली जानना चाहती है कि आपने क्या ऐसे फाइबर्स को देखा है, हमारे कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसके ऊपर जो थ्रेड होते हैं, राइट, आउटर कवरिंग थ्रेड, वो नॉर्मली किस चीज़ में यूज़ होता है और उनके फाइबर्स कैसे यूज़ करते हैं हम. वेविंग एंड knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for variety of clothing item. इस दोनों तरह की, जैसे कि वेविंग एंड knitting से हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बना सकते हैं. 3.6 History of clothing materials. Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? It appeared that in those times people used bark and big leaves of tree or animal skins and furs to cover themselves. अब यहाँ पे हम एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो किस तरह के मटेरियल्स मतलब यूज़ करते थे क्लोथ्स के लिए, वो हम जानेंगे. और हम जानने का ट्राई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि बार्क है, बिग लीव्स है, ट्रीज, एनिमल्स की स्किन जैसे कि फर्स, वो खुद के शरीर को ढकने के लिए यूज़ करते थे. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, दे लर्न टू व्यू ट्विंग एंड ग्रास इनटू mats and baskets. Vines, animals, flesh or hair were twisted together into long strands. They were woven into fabric. The early Indians wore fabric and made out of cotton that grew in region near the river Ganga. Flax is also a plant given natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ मतलब कि कृषि में ऐसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ आरंभ होने के बाद जो लोग हैं वो जो ग्रास है उसकी ट्विंग्स को इकट्ठा कर करके वो अलग अलग तरह के मतलब कि बास्केट्स है, मैट्स है, ऐसे बनाने लगे. और एनिमल्स है, जंतुए है, उसके हेयर है, वो अलग अलग जो साथ में बुनकर वो फैब्रिक्स बनाने का आरंभ कर दिया था उन्होंने. और उस तरह से उन्होंने वस्त्र तैयार करना भी सीख लिया था. पूर्व भारत में जो गंगा के नज़दीकी एरिया है उसमें लोग रुई के बने हुए कपड़े पहनते थे.
और वहाँ पे उगाई जाती थी। फ्लैक्स है वो भी हमको प्लांट्स में से मिलता है और फ्लैक्स और रुई को एंशिएंट टाइम में नाइल नदी के नज़दीकी एरिया में उगाया जाता था। इन दोज डेज टीचिंग वॉज नॉट नो. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different way draping fabrics were used. With the invention of the sewing needles, people started stitching fabrics to make clothes. Stitching clothes have gone through many variations since these inventions. But it is not amazing that even today, shari, dhoti, lungi, or turban is used as a अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक्स। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था और वो सिलाई किए हुए बिना ही कपड़े अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे आच्छादित कर देते थे और वो अलग अलग तरह के वो कवर करते थे। फिर सिलाई का आविष्कार हुआ और बाद में लोगों ने स्टिच किए हुए कपड़े पहनना शुरू किया। उसके बाद सिले हुए कपड़ों में अलग अलग तरह की भिन्नताएं आई और आपको पता है कि अभी इस टाइम में भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन वगैरह वगैरह जो सिलाई किए बिना ही लोग पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑफ our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे कि हमें अलग अलग फूड खाते हैं उसी तरह कपड़ों में भी अलग अलग वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। जैसे कि हमने आगे पढ़ा, पहले कॉटन रोल्स होता है, देन उसके बाद गिनिंग की प्रोसेस होती है, देन फाइबर्स बनते हैं, देन स्पिनिंग, देन यार्न्स में से नीटिंग, वेविंग, देन लास्ट में हमको फैब्रिक मिलता है। ओके, थैंक यू।